factor for me to interact with the participants all across the nation on this very platform. My mode of dialogue would be bilingual or Hindi or English. What is preferable? Yes, madam, Preeti ji? bilingual, Hindi and English will go with. Bilingual will be fine. Okay, thank you everyone. I can't see anyone over the screen. I think everyone has kept their video in off mode. Participant, if possible, you can on your videos. Because certainly we are on that stage when you people are attending. It's going to be a learning experience for me as well. There is nothing like that. I am going to provide a lecture over here. We are going to have certain interaction, and Yes. because the topic she has assigned me with is that is choice based credit system. I won't say it is very new, but still, as an university, we are just coming in tune with this very thing. आप में से कितनों के यहाँ जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की जो बात कही जाती है, बेसिकली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इंप्लीमेंट हो चुका है? एनीवन? यस मैम, Yes. आ गया है आ गया है। एबीसी। यस, आपके यहाँ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ गया है। हम बिहार झारखंड थोड़ा लैग कर रहे हैं, हमारे यहाँ अभी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में है ये। एनईपी आप लोगों में से कितनों के यहाँ आ गया है? हमारे यहाँ पे आ गया है मैडम। हमारे भी आ गया मैम। एनईपी आप लोगों ने हमारे यहाँ पे इधर भी आ गई। That's very fair. So what I am getting that most of participants, you are the faculty member already very well aware with the requirements of new education policy, and at the same time the role of academic bank of credit and the option that the NEP provides, that is the multidisciplinarity, it's clear to you. So here I am just starting with my presentation. Yeah, is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So certainly I would like to have interaction with you participants. Like when we talk about choice-based credit system, so basically what we do say that it is something new to the education system. So first we will talk about what exactly it means. Means when we talk about choice-based credit system, what do you people understand or get by this very word? Basically, we do say that this new education, its multidisciplinary approach and multiple entry and exit scheme, it is going to transform the whole higher education system, or rather it is the initiative step that will take India towards Viksit Bharat or Vishwa Guru concept. So when we talk about choice based credit system, आप इससे क्या समझते हैं? आपका क्या परसेप्शन है? Anyone? मैम, पहले के वक्त में जो रैंकिंग सिस्टम हुआ करता था, जो परसेंटेज सिस्टम हुआ करता था, उसकी वजह से बच्चे बहुत इमोशनली ट्रबल्ड हो जाते थे। मतलब जिस बच्चे को 98% है और जिस बच्चे को 94% है, हो सकता है उन दोनों का इंटेलिजेंस लेवल सेम हो, लेकिन फिर भी इतने हाई परसेंटेज स्कोर करने के बाद भी वो इमोशनली थोड़ा ट्रबल्ड हो जाते थे। तो अभी जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो है, इसमें जो मार्किंग है वो पॉइंट और डेसिमल्स में आता है और बहुत ज्यादा गैप नहीं है। जैसे 89% वाला और 96% वाले को ऑलमोस्ट वही सेम मार्किंग देने की वजह से उतना ज्यादा कंपैरिजन नहीं है, जबकि उनके काबिलियत की भी परख वहां पर हो जाती है। वेरी गुड। सो मैडम ने बहुत ज्यादा सटीक पॉइंट कहा है, बट अगेन इस पॉइंट से थोड़ा सा जो मेरा पर्सपेक्टिव है उसको हम लोग आगे पुटअप करेंगे, बट स्टिल आई डू अग्री व्हाट यू सेड कि कहीं ना कहीं एक कोशिश रही है ग्रेडिंग्स में, क्योंकि जहां एब्सोल्यूट मार्किंग होती थी वो क्लियर कट डिफरेंशिएशन हो जाता था कि which the person who is better and the student who is inferior. तो ये जो betterment और inferiority का जो कॉम्प्लेक्स रहता था, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश की गई। तो हम एक नजर डालते हैं कि when we talk about this complete word choice based credit system, तो certainly the concept choice comes, choice हम कैसे define करेंगे? Obviously when we have more than one option, then only we can opt for. And when we are talking in terms of academics, here we are talking about more than having one option in terms of courses, in terms of programs and in terms of सब्जेक्ट्स। तो जब हमारे पास अब नया कॉन्सेप्ट आ गया है मल्टीडिसिप्लिनैरिटी का, ट्रांसडिसिप्लिनैरिटी का, देन नेक्स्ट वर्ड जो इससे एसोसिएटेड है दैट इज क्रेडिट। बेसिकली क्रेडिट वर्ड क्या आप समझते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट एकेडमिक्स, व्हाट एग्जैक्टली क्रेडिट इज? Hello, madam. Yes, sir. Madam, I have one doubt regarding choice-based credit system. Yeah. Yes, sir.
what is exactly choice based, madam? Exactly. That's why I am taking up each and every word, and then we analyze why this term has been applied for the same. I'll just talk about that. Yes, Ma'am, you madam. asked about credit. You asked about credit. Yeah, that I is the would like thing. to add that credit basically is certain numbers or certain points that are required by the students to get promoted to the next level of education. Okay, this is what your perception is. Anyone else? There are also specific numbers of hours which are attached for the curriculum learning and outcome. Very fine, sir. The specific hours Ma'am, are being assigned for to achieve that credit. Okay, anyone else? ma'am, it provides an opportunity for the students to choose the courses from the prescribed courses, ma'am. That is the Like choice. uh, What is like a credit? core, elective, skill based, like that. Okay, fine. That is choice. But what is credit? And What exactly? credit means we can evaluate the students by means of grading system, ma'am, so that we can get the No, madam. credits. Credit nothing but the marks allotted, madam. Marks allotted. Okay. It is kind of appreciation, ma'am, for the students. Okay, very fine. Thank you. So if I would say if you go through It the means to give yes. Anyone else? to give a particular number for a particular paper. To give a No, madam. particular Hours of number. class, madam. Okay, Hours of class, madam. Hours of someone, class. okay, so summarizing the thing, someone said to give a particular number, someone said number of hours should be fixed or the hours will be assigned for the credits. So now the thing is that if we just look at that very term, जिसको कि मैं academic से नहीं associate करूँ और just dictionary में credit word का एक meaning देखिए, because many times we say ना भाई credit की बात है, तो व्हेन व्हाट वी मीन दैट किसी को अप्रिशिएट करते हैं, अरे मार्केट में उसका क्रेडिट बहुत अच्छा है, तो व्हाई दिस वर्ड क्रेडिट इज देयर. अगर आप डिक्शनरी की मीनिंग्स देखिएगा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मैंने कैम्ब्रिज डिक्शनरी से इसको जब पिकअप किया, तो व्हाट इट सेज, इट्स आइदर अ प्रेज, प्रशंसा की बात हो जाए, इधर इट इज अप्रूवल और ऑनर, एज वी से ना, एज वी से इन प्रेज कि हाँ ये उसके क्रेडिट की बात थी कि उसने ऐसा कर लिया. सो सर्टनली इट्स गोज फॉर द अप्रूवल. एंड क्रेडिट जब बात करते हैं तो हम सभी टीचिंग प्रोफेशंस में हैं, सैलरीड पर्सन है, बैंक अकाउंट होंगे, टाइम टू टाइम आता होगा ना मैसेज, द सैलरी इज बीइंग क्रेडिटेड, और चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती होगी. सो व्हाट एग्जैक्टली एट दैट टाइम इट मींस when something is got added to your account. Now this very statement, when something is got added to your account, and why I want to personally take this definition only. This definition is not mine, it is already being there in the Oxford Dictionary, you all can see over the net on the Google. So the thing is that when we say something got added, अब आप इसका जो पहले का डेफिनेशन है, जब हम उसको अप्राइजल या अप्रूवल के मोड में देख रहे थे या प्रेज के मोड में देख रहे थे, तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग दैट इट इज बीइंग एडेड टू समवन्स पर्सनालिटी और समवन्स एग्जिस्टेंस. सो एग्जैक्टली वी कैन से when we add something to someone, then that process is known as credit. Same when it comes to higher education. And as I have said, it is already being said, na, if we say it should be someone's credit, some means always to in the case means it's for the purpose of praising someone. So the thing is that जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं और जब किसी सर ने कहा ना कि बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं, मैडम हम उसे सिर्फ इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं. ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्या हो रहा है कि हम सर्टन मार्क्स को, सर्टन ग्रेड्स को उसके पूरे एजुकेशन सिस्टम के साथ एसोसिएट कर रहे हैं. इट मीन्स कि वी आर प्रोवाइडिंग और एडिंग समथिंग टू हिज educational hierarchy, and that's why this term credit has been included. Choice credit is clear, choice based credit system. Now you just go through the thing. आप मुझे बताएं, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आप इस पिक्चर से क्या गेन कर रहे हैं, किसी को इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है. और किसी सर का सवाल आया था, चूंकि जब प्रेजेंटेशन ऑन होता है तो मैं व्यक्तियों को देख नहीं पाती हूँ, दैट्स द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस आवर गूगल मीटर थिंग. बट किसी ने पूछा था ना कि ये चॉइस बेस्ड क्या कहा जा रहा है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट वेरी फर्स्ट.
आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? एक आध इंस्टेंट रिप्लाई अगर मुझसे मिल सके तो। हर एक Coordinator. व्यक्ति अपने चॉइस के हिसाब से खाने को चूज करके खाना खा रहा है, क्योंकि वहाँ पे परोसा जा so- रहा है, तो जिसको जो चाहिए वो उतना ही लेकर वहाँ पे खाना खाएगा अकॉर्डिंग टू पिक्चर। यस, ये आप देख रहे हैं मैडम। और किसी का कोई और परसेप्शन? मैम जो खाना है वो सबके लिए कॉमन है, तो लोगों को जो परोसा जाएगा वही खाना, उनके हिसाब से वो कुछ अलग से ऑर्डर करके नहीं खा सकते। आला कार्ट नहीं है, बुफे है, जो है I सबको hope वही madam मिलेगा। change in varieties madam, I hope. ओके डन। और कोई परसेप्शन? Means options madam. Options, alternatives or options. मैम खाने वाले का ऑप्शन है कि उसे क्या चाहिए, मतलब जो मेनू उस हिसाब से। अच्छा, मेनू के हिसाब से खाने वाले के पास चाहिए। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने गांव के ट्रेडिशनल विलेज पैटर्न में सर शादी क्या या किसी फंक्शन का वो भोज खाना जिसे कहते हैं खाया है? सबने Madam, in traditional only some alternatives are there. We need to pick. Okay, you need to pick. So sir, जब आप ऐसे In a modern system, so many alternatives are there. We can pick anywhere, anytime. Okay, so what I feel सर कि अगर आप लोगों ने हमारे बिहार वगैरह में उसे कहते हैं पांच लगा के बैठना, मतलब सिटिंग इन लाइन, तो एवरीबॉडी विल सिट टुगेदर एंड व्हाटएवर बीइंग सर्व, जो भी आइटम्स रहेंगे वो एक एक करके सबकी थाली में सर्व किए जाएंगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट, सबकी थाली में वो सर्व होगा एंड देन फाइनली कोई खाना नहीं खा सकता। Yes, madam. ट्रेडिशनल इजंट इट? कोई डिफर करता है इससे? There is no difference in traditional, madam. There is no difference. So All are that same. is the traditional way of having our parties, isn't it? और इस पिक्चर में मैंने बड़ी रिफ्लेक्ट किया है। देखिए, ऐसा नहीं था कि खाने में तब कम वैरायटीज रहती थी, जो whatever variety is there, it is available for everyone. Everybody able to take the things, but the thing is that here you don't have the option to pick something or किसी का माइक ऑन है, थोड़ी वॉइस इको हो रही है। यस, फैमिली, या सो द थिंग इज दैट कि होता क्या था ऐसे सिस्टम में कि फूड के आइटम्स तो बहुत होते थे, लेकिन वंस यू आर सिटिंग इन दैट वेरी लाइन टू हैव दैट लंच और डिनर, आपके प्लेट में सर्व होता जाता था। ये आपकी चॉइस की बात नहीं रहती थी आपके प्लेट में अब क्या आएगा, या जो मुझे ना पसंद है वो ना लूं, या पसंद है उसे और लूं। जिस तरीके से वो सर्व होता जाता था, हर एक को वही खाना पड़ता था। नाउ दिस इज द मॉडर्न सिस्टम। ये भी एक पार्टी का ही सीन है। अगेन दिस इज, यू कैन कॉल इट इज गेट टुगेदर और लंच, वेडिंग लंच और डिनर, व्हाटएवर। यहाँ भी आप बताइए कि इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? रखा हुआ है, सब अपनी मर्जी से ले सकते हैं, उनको जो बहुत ये है, अपनी मर्जी से सब ले सकते हैं। यस, दैट्स द थिंग। Here we have choices, ma'am. Whatever Yes. we need, so we can pick up. So the thing I want to bring to your notice कि सर पहले भी नंबर ऑफ डिशेस रहते थे जब पार्टी थ्रो होती थी तो, और अब भी जो है वो नंबर ऑफ डिशेस हैं। डिफरेंस कहाँ आ गया है? ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ आया? पहले आप बाउंड, वंस यू सिट इन द लाइन, you have to get everything in your plate what is being served, and now अब क्या हो गया है कि when the things are being served only and as per your choice, as per your appetite or your liking, you can take up the things. अब फिर आपसे लोगों से ये प्रश्न है कि क्या अब हम एकेडमिक्स की तरफ आ जाएं, तो क्या पहले हम लोग अपने ऑनर्स सब्जेक्ट को नहीं चूज करते थे? और अगर मान लिया जाए कि अगर बॉटनी या जूलॉजी ऑनर्स ले लिया जाता था, तो साथ में केमिस्ट्री या फिजिक्स को ऑप्शनल या जीई पेपर रखने का ऑप्शन तो मिलता ही था, तब भी तो हम चूज करते थे। जब कोई हिस्ट्री ऑनर्स लेता था तो उसे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स में से तो चूज करने का ऑप्शन मिलता ही था। तो व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर? ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ है फिर? आर्ट्स वाला साइंस का सब्जेक्ट ले सकता है। पहले लिमिटेड ऑप्शन थे, अभी आर्ट या कॉमर्स फैकल्टी से। That's the thing, and that's why we do call it as a transformative approach. The thing is that
कि पहले अगर किसी बच्चे ने जूलॉजी ऑनर्स ले लिया तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो बॉटनी और केमिस्ट्री ही एज अ सब्सी ले सकता था। मैथ ऑनर्स का बच्चा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री एज अ जीई सब्जेक्ट ले सकता था। लेकिन आप सपोज कीजिए कि आप जूलॉजी ऑनर्स से पढ़ते हैं एंड एट द सेम टाइम आपका इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छा इंक्लिनेशन है, तो at that time you don't have any option to take it as a elective subject. This very system allows you to cross the boundaries of the disciplines, and now from the faculty of science you can move towards the faculty of humanities, you can move towards the faculty of social sciences, commerce as well. So even the performing and fine arts are equally open to you, so that you can opt the thing. And that's why जिनकी तरफ से ये प्रश्न आया था कि चॉइस बेस्ड क्यों कहा जाता है, द थिंग इज दैट कि सर अब ये सिस्टम हमें परमिट करता है कि इट डजंट मैटर कि हम किस डिसिप्लिन के सब्जेक्ट को ऑप्ट करें, जो भी अपनी चॉइस से ऑप्ट करेंगे उसके क्रेडिट्स जुड़ते चले जाएंगे मेरे इवैल्यूएशन में और मेरे फाइनल डिग्री के अवेलमेंट में। इट मीन्स कि अब बीइंग जैसे मैं जूलॉजी सब्जेक्ट से हूँ, तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया और ये ऑप्शन रहता तो इट मीन्स कि अगर मैंने मास्टर्स रादर आई वुड से ग्रेजुएट ऑफ और अंडर ग्रेजुएट ऑफ जूलॉजी की जब मैं डिग्री ले रही हूँ, तो एट द सेम टाइम मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे चॉइस से मैं सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और फाइन आर्ट्स के पेपर्स भी ले सकूँ। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज चॉइस बेस्ड सिस्टम। द थिंग इज दैट कि ये जो बफे सिस्टम आया कि आप टेकअप करो, ले लो, पहले जैसे कहा मैंने कि ट्रेडिशनल सिस्टम में हम बैठ के खाते थे, अब बफे सिस्टम क्या हो गया, द थिंग्स आर बीइंग सर्व्ड एंड वी कैन टेक इट। तो एक थोड़ी सी इसके हिस्ट्री की तरफ चला जाए कि ये सिस्टम आया कब। बेसिकली अगर इसे देखा जाए तो 2015 was the year when we moved towards this CBCS system। और इस सिस्टम की तरफ मूव करने का so the thing is that कि this system was being introduced और all over across India जो है 2015 16 was the academic year जिसके बाद से ये स्टार्ट हो गया। मेन कॉन्सेप्ट क्या था या पर्पस क्या था इसको टेकअप करने का, कि स्टूडेंट्स के पास या फिर जितने भी एकेडमिक लाइंस में लोग आ रहे हैं, दे आर स्टडिंग वेदर इन इंडिया और वेदर इन अब्रोड, द होल सिनारियो इज नाउ बीइंग चेंजिंग। अगर आप लोग इमेजिन कर लीजिए, थोड़ा सा मैं इसके हिस्ट्री के बारे में बात कर लूंगी कि पीवी नरसिम्हा राव आप लोगों को याद होगा कि ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और तब उस समय टीवी अगर आप लोग देखते होंगे, न्यूज देखते होंगे, तो एक चीज आती थी जिसमें बात होती थी, वो पेटेंट वगैरह की बातें आती थी और कहा जाता था द गेट की बात थी, जहाँ की ट्रेड जो है वो ग्लोबल लेवल पे ओपन हो रहा था। एंड वी वेर सेइंग कि हल्दी क्या हमारा हल्दी नहीं रह जाएगा, नीम हमारा नीम नहीं रह जाएगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे किसकी तरफ, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ। When it opened the market to the the market of every nation became an open market to the other countries of the world। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव था, गेट का था, और जो मार्केट कहा जाएगा वो ओपन हो गया सारे देश के लिए। जैसे ही ये मार्केट ओपन हुआ, interaction with the foreign countries increases, at the same time cultural exchanges also increased, and this leads towards exchange in the field of education also, and we move towards the globalization of education। आप सभी रिकलेक्ट करें कि पहले अगर एजुकेशन के बारे में सोचा जाए तो शायद ही कोई इक्का दुक्का बच्चा होता होगा जो बताता होगा कि हमारे चाचा या हमारे पापा या मेरे भैया जो है वो अमेरिका पढ़ने गए हैं। बट दैट सीन हैज चेंज्ड अ लॉट। नाउअडेज आप देखिएगा कि आपके हर नियर डियर वंस में से 2 या 4 परिवार के बच्चे ऐसे होंगे जो अपने एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। पहले लोग सिर्फ आईटी सेक्टर वाज द मेजर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहां लोग पहले जॉब करने के लिए बाहर जाते थे। सिलिकॉन वैली वाज द प्लेटफॉर्म व्हिच ब्रिट ऑल ऑफ द इंडियंस टुवर्ड्स द अमेरिकन मार्केट।
नाउ द थिंग इज दैट कि जब एजुकेशन में ये बातें आने लगी और अब जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, then more Indian students are moving towards higher education from abroad, एक और सीन चेंज होता जा रहा है कि even from the abroad IITs, IIMs are getting more students from the outer countries. So we are moving towards the globalization of education. अब जब हम globalization of education की बात करेंगे तो certainly we have to maintain that standard, we have to make that standard which should remain compatible with that particular country. क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत अब आप सभी जानते होंगे कि एनईपी में एक नया फॉर्म लाया गया कि अब ये कोर्स कितने साल का है ऑनर्स का? एनीवन? 4 years मैम, 4 years। आप सोचते होंगे कि 3 साल से 4 साल बढ़ाने का पर्पस क्या था? किसी एक को आइडिया? अगर ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के टर्म में देखा जाए मैम, रिसर्च को बढ़ावा देना ये एक बहुत बड़ा रीजन है उसका। That's the very nice thing, madam, but that is in context of Indian. Very true, you said. वो सबसे, क्योंकि वो 4th year completely devoted है रिसर्च को, लेकिन ग्लोबल टर्म पे देखा जाए तो 4 year ग्रेजुएशन की क्या जरूरत थी? मैम वहाँ पे दे नीड फॉर द मास्टर्स कि आपका 4 साल का यूजी हो तभी वो That's या the फिर thing. Here he फिर hit आपको the मास्टर्स nail. कंप्लीट। वेरी ट्रू सर, हियर you hit the nail कि जब हमारे बच्चे जब गेट जैसा एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहे थे, जो इंजीनियरिंग के बच्चे थे उनको तो बहुत आसानी से एंट्रेंस मिल जा रहा था, लेकिन हमारे जो रेगुलर मोड के बच्चे थे जो साइंस आर्ट्स ग्रेजुएट होके जा रहे थे, दे हैव टू डू 1 year कोर्स ओवर देयर, क्योंकि जो फॉरेन की पॉलिसी थी या नेशनल प्लेटफॉर्म पे जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, they were having that 10+2+4 education system, and that's why अपने बच्चों को उस लेवल पे लाने के लिए हमारा सिस्टम भी रिफॉर्म हुआ है ग्लोबली to meet the global demands. It had become a 4-year course, and certainly 4-year course को क्वालिटी से imperative किया जा सके, so put quality over there. We have focused more on the research and development as madam has said. Now इसका पर्पस से क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या खासियत है हमारे इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की, क्या क्या रहेगी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी कि ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा हमको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखने के लिए. इट मीन्स वी विल रिमेन फ्लेक्सिबल to choose our subject. It will give all the opportunities to choose subject from social sciences, fine arts, commerce, computer, whatever we need. Then comes, it depends upon grading system. We do know कि अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, चॉइस बेस से ग्रेडिट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और क्रेडिट से ग्रेड्स की तरफ बढ़ रहे हैं. ग्रेडिंग सिस्टम करने का क्या फायदा होता है? अगर हम नंबर्स दे रहे हो या ग्रेड्स दे रहे हो, इट्स ऑल इक्वल, वी आर इवैल्यूएटिंग द पीपल, सो व्हाट्स द डिफरेंस? मैम लेकिन इसमें हम लोग एक जनरल कैटेगरी में बच्चों को फिट कर रहे इंस्टेड ऑफ रैंकिंग देम 1 2 3 4. दैट्स द थिंग. जो मैडम ने पहली बात कही, शुरुआत में किसी मैडम की तरफ से ये बात आई थी कि कहीं ना कहीं वो हायर क्वालिटी का है, एक इंफीरियर है, एक सुपीरियर है, इस डिमार्केशन को कम किया गया. वी वांट टू मेक आवर एजुकेशन सिस्टम, अगर एनईपी की आप विशेषताएं पढ़े तो वो क्या कहता है? मल्टी डिसिप्लिनरिटी होनी चाहिए, मल्टीपल एंट्री एग्जिट होना चाहिए, होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए. सो होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात आती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, सो हियर वी आर जस्ट, ये जो गैप है ना अच्छे बुरे की क्वालिटी का या हर एक को बॉक्स में फिट कर देने का, इस बॉक्स को कम करने की कोशिश की गई है. बट द थिंग इज देन अगेन आई वुड से कि ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, यू पीपल माइट डिफर, कि जब हम किसी को ग्रेडिंग देते हैं और किसी को A+ और A बनाते हैं तो अपने आप वो डिमार्केशन फिर चला आता है. सो स्टिल वी नीड न्यू एवेन्यूज और द न्यू प्रोसेसेस बाय विच वी कैन इवैल्यूएट, क्योंकि इवैल्यूएशन अपने आप में ही एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या करता है, पर्सन के साथ टैग कर देता है कि आपका वैल्यू क्या है. इवैल्यूएशन वी कॉल इट. तो सर्टनली इस सिस्टम से कैसे बाहर आया जाए, ये एक अभी भी ओपन एवेन्यू है. वी हैव टू वर्क ऑन द सेम, लेकिन कहीं ना कहीं
ये डिफरेंसेज को कम करने की कोशिश की गई है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। देन कम्स द क्रेडिट ट्रांसफर। हम लोग बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की, लेकिन एक और नई चीज आ गई एनईपी में, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट्स। व्हाट एग्जैक्टली इट इज, एनीवन? आप लोगों के यहाँ इम्प्लीमेंटेड अवेयर होंगे सर, मैडम्स? मल्टीपल है कि अगर स्टूडेंट इज नॉट कंफर्टेबल और अगर जैसे ट्रांसफर होती है पेरेंट्स की या उनको अगर यूनिवर्सिटी चेंज करना है तो बच्चे वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो दैट इज मल्टीपल। I think it is after you will get the certificate course. After completing second year, if you exit, you will get the diploma. After third year, you will get the honors degree. And after fourth year, you will have an option of getting a specialized degree or a research degree. Research. Very true. More or less everyone is well aware of, and this is where this credit things comes into the picture. The thing is that कि आप 1 साल की पढ़ाई करके छोड़े या 2 साल की पढ़ाई करके छोड़े, आप इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपके फादर का जॉब ट्रांसफर हो जाए, आपको किसी वजह से मूव करना पड़े, सो इट जस्ट एनहांसेस द मोबिलिटी कि आपके साथ क्रेडिट एड्स कर दिया गया। क्रेडिट एज वी हैव टॉक्ड अर्लियर कि आपका जो भी इवैल्यूएशन हुआ, आपकी जो ग्रेडिंग हुई, वो खत्म नहीं हो रही है। इफ ड्यू टू वन रीजन और अनदर आपको एग्जिट लेना भी पड़ रहा है, तो आप अपने बचे हुए क्रेडिट्स के साथ जो भी आपने अवेल किया था वो जाया नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। यू कैन एक्यूमुलेट दिस क्रेडिट्स एंड अगेन कम बैक टू एकेडमिक्स आफ्टर अ गैप एज वेल, and even from one place to another you can carry on your credit. It's just like our bank account. जैसे हम अपने पैसे जो जमा किए हैं, अपने पैसे, ऐसा नहीं है कि 1 साल बीत गया तो हमारा पैसा खत्म हो गया, जब मर्जी तब हम उसको यूज कर सकेंगे। Then comes the mobility across all disciplines. We have already talked about it. Then it provides कोर एंड ओपन इलेक्टिव्स। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कोर कोर्सेज की पढ़ाई और इलेक्टिव कोर्सेज। एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर कहा जाता है कि दिस इज अ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। व्हाई दिस एनईपी और रादर this very choice based credit system is considered as student centric? Student centric कहने की क्या वजह है? We are providing the choices. He can opt as per his needs. That's why only sir it is choice, Mr. To focus प्रायोरिटी स्टूडेंट्स है यहाँ पे, to focus on their needs, on their abilities, and to have with their own pace of learning. That's it. This is what I want to convey over here. When we talk about own pace, this is something really important. This multiple entry and multiple exit, and at the same time, the study with own pace. Because we live in a country of vast diversity. बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज है। हम सभी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में पोस्टेड हैं, और सर हम अपने बच्चों में ही देखते होंगे, देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड स्पेशली इन बिहार एंड झारखंड एंड मध्य प्रदेश वी सी देयर आर स्टूडेंट हु आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर। वो अपनी फैमिली से पहला बच्चा है जो कॉलेज सिस्टम में आया है। दोनों के अप्रोच में बहुत अंतर होता है। देन वी सी देयर आर फास्ट लर्नर्स, देयर आर स्लो लर्नर्स। अपार्ट फ्रॉम जेंडर डाइवर्सिटी, सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड पे भी बहुत डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। सो हर एक का नीड जो है वो बहुत डिफर करता है। ऐसे में हमारा सिस्टम उनको 2-4, ये जो स्टूडेंट सेंट्रिक क्यों कहा जाता है सर? पहली चीज, उनको अपनी चॉइस से ऑप्ट करने को मिल रहा है। दूसरी बात कि एज पर देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, एज पर देयर सोशल नीड्स, दे कैन ऑल्सो डिसाइड देयर पेस। अगर वो बहुत तेजी से ज्यादा कोर्सेस नहीं ले पा रहे हैं, वो पढ़ाई के साथ उसके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो ही और शी कैन ऑप्ट द कोर्सेस either in online or offline mode, that is the hybrid mode of learning, और वो अपने क्रेडिट्स कहीं से भी अक्वायर कर जाता है। और ये सिर्फ मैं इसको हमेशा नेगेटिव तरफ से या मतलब सोशली डिप्राइव्ड लोगों के लिए नहीं देखिए, आप फास्ट लर्नर्स को भी देखिए। एक बहुत तेज बच्चे को स्लो पढ़ाया जा रहा है तो ये उसके साथ भी अन्याय है। नाउ द थिंग, इफ अ स्टूडेंट इज competent enough, intelligent enough, smart enough, he can handle more than one courses at a time. He has the option that she can go for regular
courses. At the same time, she can add more credits to her account through online courses. So this becomes a student centric approach. It means कि अब जो हम एज अ टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी जो कोर्स प्रोवाइड कर रही है उसी से बंधे रहने की जरूरत नहीं है. They can acquire their credits from everywhere, from any platform, and at the same time they can study with their own pace. So these features make this whole course or this whole approach a student centric one. Then global competency, we all do know, we talked about, क्योंकि हम ये सारे पैरामीटर्स नेशनल प्लेटफॉर्म से हट करके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ ले जा रहे हैं. सो आवर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज कॉम्पिटेंट इनफ और मेकिंग आवर स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंट इनफ टू गो फॉर द ग्लोबल लेवल और ग्लोबल जॉब मार्केट. देन कम्स equality among the learners. How it will bring equality among the learners? Anyone quick remark? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम किस तरीके से लर्नर्स के बीच इक्विटी ला सकता है? Ma'am, we will evaluate them according to their credits only. So how many credits they have, according to them we will going to evaluate them. तो सर ये इक्वालिटी कैसे लाएगा जब इक्वल की फीलिंग? कोई कास्ट क्रिएट that won't be practiced or followed. It will be like what the sir said is completely based on the performance and the credits that has been accumulated by the candidate. Okay, और किसी का कोई रिमार्क? सर अगर आप में से कोई बिहार और झारखंड से शायद नहीं है, मैं आई डोंट नो वेदर इट इज एप्लीकेबल टू और नॉट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी स्टेट कॉल्ड बिहार और झारखंड. Since we belong from there, here that's why I can say this. आप फील करते हैं सर हमारे स्टेट में क्या होता है, कोई बच्चा अगर साइंस पढ़ रहा होता है तो वो मान के चला जाता है कि ही और शी इज गुड इन स्टडीज. कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा हो और अगर उसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखा हो तो भी ठीक है, लेकिन वो साइंस वालों से डाउनग्रेड समझा जाएगा. और हिस्ट्री ऑनर्स और हिंदी और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को सर कहा जाएगा कि वो पढ़ने में ठीक नहीं था, ही और शी हैज गॉन फॉर दैट. एक ऑलरेडी जैसे कि मार्क्स के बेसिस पे हम ग्रेड कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में भी एक ग्रेड एग्जिस्ट हो रहा होता है. दोज हु हैव स्टडीड साइंस आर गुड, those who have studied arts are okay or so sort of, and those people who have gone for fine arts, in general our society remains so much insensitive towards them that they call them as good for nothing. डांस सीख रहा है यूजलेस, कोई पेंटिंग सीख रहा है इट्स ऑल यूजलेस. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं फाइन आर्ट्स तो मैं कहती हूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे छाया हुआ है कि वी डोंट गिव वेटेज टू दोज सब्जेक्ट्स. एंड दैट्स व्हाई वी से देन व्हेन वी ब्रोक दिस boundary of disciplines, when we go for this transdisciplinary and multidisciplinary approach, certainly we try to bring equality among the learners also. अब कोई साइंस का बच्चा अपने आप को सुपीरियर नहीं समझेगा, बिकॉज साइंस के साथ उसके पास पूरा ऑप्शन है कि वो सोशियोलॉजी पढ़ ले कि साथ में पेंटिंग एज अ पेपर ले ले. सो दीज आर द मेन फीचर्स. कहीं ना कहीं आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे. आई डोंट नो बेसिकली अबाउट महाराष्ट्र, लेकिन क्या सर महाराष्ट्र में क्या इक्वल वेटेज दिया जाता है फाइन आर्ट्स को? नहीं. That's why I said ना कि all over India ये सिनेरियो रहा है कि आर्ट सब्जेक्ट को थोड़ा कहीं ना कहीं साइंस से इंफीरियर माना गया. आई एम सॉरी टू रिमार्क ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म्स. ये बात सही है. आप सोशल स्तर पे, मैं आज की बात नहीं कह रही हूँ, मैं 20 या 25 साल पहले की बात कहूँ तो शायद एज अ पेरेंट्स लोग ज्यादा फील करते थे कि बच्ची साइंस ग्रेजुएट है तो वो पढ़ने में अच्छी होगी, उसकी शादी करनी आसान हो जाएगी, rather than being an arts graduate. So you all can imagine what the society scene was. Though the scene has changed a lot, but still I would say to bring it up to the global level, still some changes are required. Then comes, as I said, courses of choice, learning at own pace, inter-multidisciplinary approach.
try to take additional courses if you are a fast learners, mobility through that credit system, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, इसके बारे में हम लोग स्किल एनहांसमेंट को मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, इसके बारे में और बात करेंगे। एप्लीकेबल टू अप्लाई टू ऑल सॉर्ट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर आप लोग अवेयर हो, आई डोंट नो बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी में ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एनईपी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप चाहें तो एक सब्जेक्ट एक कॉलेज से पढ़ें और आप अपना दूसरा कोर्स जो है किसी दूसरे कॉलेज या दूसरे यूनिवर्सिटी से टेकअप कर सकते हैं। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, इस अप्रोच को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, यू आर गेटिंग सैलरी आपके कैनरा बैंक के अकाउंट में आती है। आपकी जो सैलरी है वो सैलरी किसने दी? आपके कॉलेज ने दी, आपकी यूनिवर्सिटी ने दी। नाउ द थिंग इज दैट कि आप बाहर क्लासेस लेते हैं, तो आप सपोज कीजिए कि रांची यूनिवर्सिटी से एक क्लास आपने लिया, तो रांची यूनिवर्सिटी ने भी आपके अकाउंट में सैलरी डाली। आपने एट द सेम टाइम शिमला यूनिवर्सिटी में एक क्लास लिया, उसने भी डाला। आप कहीं पीएचडी का थीसिस का एक्सपर्ट बन करके गए हैं वाइवा लेने, उसने भी डाला। इट मीन्स कि यू कैन गेट credits or amounts from different institution, it will go to account। at the same time आप शेयर ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उसके पैसे भी आपके अकाउंट में आ रहे हैं। सेम वे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनमें से कहीं से भी आप अपने डिफरेंट कोर्सेस टेकअप कर सकते हैं। एनईपी ने ये ऑप्शन प्रोवाइड किया है, लेकिन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड बहुत ज्यादा हाई डिमांडेड है। वी विल टॉक अबाउट लिटिल लेटर। देन कम्स द मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, यू ऑल नो। अब चेंज इन अप्रोच की बात करेंगे, लेकिन जिस बात को मैं आपसे अभी कह रही थी, महाराष्ट्र के बारे में बहुत वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हूं मैं। आई वांट टू नो रादर कि सर इसमें बाधाएं कहाँ कहाँ है, वेयर आर द इम्पेडिमेंट्स वी हैव टू लुक। द थिंग इज दैट कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके मैं अपने यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेती हूँ, तो हर टीचर हर जगह मैंने ये सिनारियो देखा है ऑल ओवर इंडिया, जहाँ जहाँ मैं क्लासेस रहती हूँ, हमेशा ये बातें निकल के आती है कि वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं। तो नंबर ऑफ टीचर्स एंड फैकल्टी, रादर मैन पावर कहा जाए, तो वो कंपैरेटिवली कम है। आप एक रूटीन बनाने में परेशान रहते हैं, जबकि आपके पास फिक्स मॉड्यूल रहता है। ऐसे में एक बच्चा अगर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स ले लेता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ले लेता है, तो उसका रूटीन मैनेज कैसे हो? दैट रिमेन्स अ बिग इशू। ये एक बाधा है इस चीज को करने में। दूसरी चीज, क्रेडिट की बात और मल्टी इंस्टीट्यूशनल की बात आती है। सर आपने नोटिस किया होगा कि क्रेडिट में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, कि कितने आवर का वो कोर्स है उस पे वो क्रेडिट बेस होगा। जब हम लोग अटेंडेंस मेंटेन करते हैं, रेगुलर अटेंडेंस मेंटेन करना इटसेल्फ इज टफ फॉर ऑनर सब्जेक्ट एंड जीई सब्जेक्ट एंड देन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। इसके बाद जब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर हम मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में जाएंगे। हमारे यहाँ के अटेंडेंस को तो मैं वेरीफाई कर सकूंगी, लेकिन वही बच्चा किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से जब वो अटेंडेंस और वो क्रेडिट्स लेके आ रहा है, तो उसके अटेंडेंस को वहां देखना एक मेजर चैलेंज हो जाएगा। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी एन इम्पेडिमेंट। आपके यहाँ ये व्यवस्था है, तो क्या आप दूसरे यूनिवर्सिटी के सेंटर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं? मतलब आपके कॉलेज में कोई ऐसा बच्चा है जो अपना कोर्स का जीई कोर्स कहीं और से करके आ रहा हो? एनीवन? और यू पीपल अलाउ दैट? No, ma'am. No, ma'am. That is the thing, and that's why I do say कि ये बाउंड्रीलेस अप्रोच जो रहता है एनईपी का, क्योंकि सरकार ने एनईपी इम्प्लीमेंट करने की बात तो कह दी है, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट्स हैं, दे आर स्टिल अंडर क्वेश्चन, दैट हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन टोटलिटी विदाउट much or rather a vast change in our infrastructural maintenance system. So मैम एक चीज और है, कि अगर एक बच्चा है जो एक कोर्स कर रहा है जिसकी फीस है 2000 रुपीज, और वो अगर दो अलग अलग कॉलेज से दो अलग अलग सब्जेक्ट कर रहा है, वो फीस
कहाँ भरेगा और कैसे भरेगा? ये अगेन दैट्स इट ये अगेन एक बहुत बड़ा मतलब इस सिस्टम को अगर टोटलिटी में लाना चाहा जाए तो बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स नजर आ रहे हैं। एंड आई एम सॉरी टू से कि मैंने जहां जहां जब बात करने का मौका लगा है, व्हाट आई सॉ कि इवन ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी है ना मैडम, मैंने देखा कि वो पूरा फुल फ्लेज नहीं चल रहा है, उसमें भी लिमिटेशंस कर दिए जा रहे हैं। साइंस वाले बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा पहले बॉटनी और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स था, उसके साथ जियोलॉजी को ऐड कर दिया गया है, एंथ्रोपोलॉजी को ऐड कर दिया गया है, बाकी अगेन अब वो दूसरे अप्रोच में। So these limitations are still there, though we say that we have implemented NEP, but NEP in its true sense requires a vast infrastructure change, and that is not being provided by the system yet. We have to work a lot. अगर हम रियली उसके एसेंस को लाना चाहते हैं सिस्टम में, तो इट विल टेक अ ग्रेट टाइम एंड ग्रेट सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो अप्रोच में चेंज की जो बात थी, रिजिडिटी मोर और लेस ये बातें हम लोग कर चुके हैं। एक चीज कि पढ़ाई जो है वो CBCS की वो सेमेस्टर सिस्टम में रन करने लग जाती है। वी हैव लेफ्ट आउट, वो तो पुराने दिनों की बात हो गई, साल भर में एक एग्जाम लेना। और आप सभी इमेजिन करेंगे कि सबके यहाँ होगा ये कि मिड टर्म एग्जाम लेना और एंड टर्म एग्जाम लेना। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जो हमने बात कही ना कि जब कभी भी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तो व्यक्ति को ग्रेड कर दे रहे हैं। तो एक था कि भाई एक बार एग्जाम लेकर के इनको ना इवैल्यूएट किया जाए, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो इवैल्यूएशन का, सो दैट कि व्यक्ति अपने आप को और बच्चा अपने आप को बहुत ज्यादा सेग्रीगेटेड मत समझे सिस्टम से, या फियरफुल साइकोलॉजी ना डेवलप हो जाए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप खुद सोचिए कि हालात ये है अब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कि साल भर में 6 महीने हम लोग एग्जाम्स ही लेते रहते हैं। अभी मिड टर्म एग्जाम है, अभी एंड टर्म एग्जाम है। टीचर्स जो है इवैल्यूएशन में इतने लगे हुए हैं, आज ऑनर्स का पेपर चेक कर रहे हैं, कल जीई का पेपर चेक कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लेने जाना है और प्रैक्टिकल के एग्जाम्स रन कर रहे हैं। Very true, ma'am. Very true. You all can imagine कि what a complicated scenario it is without, जबकि हम लोग बहुत उसके लिमिटेड अप्रोच को लेके चल रहे हैं। तब जब आप सभी ने फील किया होगा कि वो जो हमारे एबिलिटी एनहांसमेंट के कोर्सेस हैं उसमें हमने कोई प्रैक्टिकल नहीं रखा है। एबिलिटी एनहांसमेंट सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी है, तो कई जगह उसके एग्जामिनेशंस जो है वो ऑब्जेक्टिव कर दिए गए हैं। So you all can understand that what this choice based credit system एक सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देने से नहीं हो जाता है। उसके पॉजिटिव फैक्ट्स हैं, बट एट द सेम टाइम उसकी बहुत डिमांड्स भी हैं। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट। वेल, कमिंग टू द थिंग बैक, annual to semester system, marks to grades, student friendly, teacher to mentor से certainly ये सब choice based system में टीचर का रोल बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर रही है, क्योंकि टीचर अब एज अ टीचर नहीं रहेगा। जब स्टूडेंट्स के पास चॉइस है, उसके पास ऑप्शन है, तो टीचर हैज़ टू प्ले द रोल ऑफ मेंटर एज वेल। नाउ द थिंग इज दैट कि थोड़ा सा अब इसके स्ट्रक्चर को देख लिया जाए। आप सभी चूंकि आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेड है, इसलिए अब मैं बहुत क्विकली इन स्लाइड्स में बढ़ूंगी, क्योंकि आप सब गेन कर पा रहे होंगे। एक सब्जेक्ट हो जाता है कोर सब्जेक्ट, दूसरा हो जाता है इलेक्टिव, जिसको कि हम लोग पहले सब्सिडियरी सब्जेक्ट या माइनर कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस, और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस भी दो तरीके के हो जाते हैं। एक हो जाता है जिसमें कि आपको पढ़ना होता है इन्वायरमेंटल साइंस, और दूसरा हो जाता है लैंग्वेज पेपर। दैट इज वन सेक्शन ऑफ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। एंड दूसरा सेक्शन क्या हो जाता है, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में ये वो कोर्सेज हैं जहां अगेन आपको चॉइस का ऑप्शन मिलता है। दीज आर आल्सो नोन एज फाउंडेशन कोर्सेज। व्हाई दीज आर नोन एज फाउंडेशन कोर्सेज? बिकॉज यहाँ हम कोई बहुत डिटेल आइडिया नहीं देने जा रहे हैं। वी आर जस्ट हैविंग द कॉन्सेप्ट कि एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट व्यक्ति को
इतना तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी हैव पुट दोज कोर्सेस ओनली। जैसे कि वी ऑल डू नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। इन्वायरमेंटल कंसर्न इज समथिंग द मेजर कंसर्न नॉट नेशनली बट इंटरनेशनली, एंड दैट्स व्हाई आप सभी के यहाँ भी AECC पेपर में आई थिंक कि इन्वायरमेंटल स्टडीज ही होगा। Yes. Yes, AEC में नहीं है मैडम, वो AEC में नहीं है मैडम, आपके यहाँ किसमें है मैडम? BEC में है मैडम, वो वैल्यू एजुकेशन कोर्स। एक्चुअली अगर आप स्क्रीन देखें तो आप फील किए होंगे कि AEC ऑब्लिक मैंने लिखा है फाउंडेशन या वैल्यू एडेड, दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है इसको। कई जगह इसे AECC का नाम दिया गया है और कई यूनिवर्सिटी ने इसे अपने वैल्यू बेस्ड कोर्स में रखा है, लेकिन ये हर जगह एक कंपल्सरी पेपर के रूप में है, बिकॉज इट्स अ कॉमन फीलिंग दैट कि एनीवन हो, एक कहा जाता है ना कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में आपको अपने इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए, आपको अपने लैंग्वेज के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ये दो कोर्सेस वहां पुटअप किए गए हैं कंपल्सरी कोर्स के रूप में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड और इन द फॉर्म ऑफ एबिलिटी एनहांसमेंट। इसके अलावा इसका एक दूसरा पार्ट है दैट इज नोन एज द स्किल एनहांसमेंट। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस में क्या खासियत है या इसको क्यों रखा गया है? मैम हमारे यहाँ पे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में मैं कॉमर्स से हूँ, तो स्टार्टअप सपोर्ट एग्जीक्यूटिव एंड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव करके सब्जेक्ट्स के चॉइसेस दिए हुए हैं। तो ये बेसिकली बच्चों को कुछ नए स्किल सिखाने के लिए जो उनको फ्यूचर में उनके करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे या नई दिशा देंगे। दैट्स इट। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ही यही है कि एक तो आप देखिएगा कि ये कंपल्सरी पेपर्स हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं और इवन यूनिवर्सिटीज को भी लिबर्टी दी गई है यूजीसी की तरफ से कि वो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, स्टिल every university has got the liberty कि as per their local needs they can add more paper on that। वो अपने से कोर्स फ्रेम कर सकते हैं, अपने से नया प्रोग्राम डाल सकते हैं। ये लिबर्टी क्यों दी गई है? बिकॉज रीजन टू रीजन जो गोवा की नीड्स हैं सर्टनली वो झारखंड की नीड्स नहीं है, जो मणिपुर का नीड है वो केरला का नीड नहीं है। तो अपने एमबीएस के हिसाब से आप अपने कोर्स फ्रेम कर सकते हैं और पर्पस अगेन एक वही रहता है कि एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट जब पास आउट करता है तो उसके पास कुछ स्किल्स रहें जिससे अगर वो मेन स्ट्रीम जॉब मार्केट में नहीं भी जा रहा है तो वो अपना लाइवलीहुड सस्टेन कर सके, जैसे मशरूम कल्टीवेशन, फिशरीज और लॉट्स ऑफ कोर्सेज। सर्टनली आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस, तो मैं इनसे रिलेटेड कह रही हूँ। मैडम ने एक बहुत अच्छा कोर्स अभी अपने यहाँ का बताया कि कंपनी स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने कोर्स रखा है। सो दीज आर द थिंग्स विच प्रोवाइड्स यू। और जब हम ये आप स्ट्रक्चर अगर आपकी स्क्रीन पे विजिबल है तो सर सबसे नीचे के आप लाइंस देखिएगा, इलेक्टिव कोर्सेस एंड फाउंडेशन कोर्सेस, सब तरफ चॉइस है, लेकिन एक जगह लिखा गया है नो चॉइस। नो चॉइस कंपल्सरी फाउंडेशन। दैट्स द थिंग। ये नो चॉइस पेपर्स किसके लिए हैं? आपको अपने लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव होना है, दैट्स व्हाई द लैंग्वेज पेपर इज नो चॉइस पेपर। अगेन इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव होना है, दैट्स व्हाई इन्वायरमेंट इज नो चॉइस पेपर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें बिल्कुल आप एक्चुअली उसके और भी कहीं कहीं अलग नाम से आया है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के नाम से एक पेपर आता है मैडम, हमारे यहाँ इंक्लूड किया गया है। सो इट मीन्स कि यू हैव टू रिमेन अवेयर अबाउट योर रूट्स। भारत का जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, हमारा एजुकेशनल हेरिटेज है, उसके अवेयरनेस के लिए। बट दैट इज द डिफरेंट एस्पेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, कि हम अभी मेन बात कर रहे हैं कि सीबीसीएस में जो हमारी ये है। आईपीएस भी आता है मैडम इसमें। आईकेएस को मैडम अलग से एक पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड अगेन उसको सबके लिए कंपल्सरी बनाया जा रहा है। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज अभी इस फ्रेम को अडॉप्ट नहीं की है, दे हैव टू अडॉप्ट इट येट। और रेदर यूजीसी की ओर से लास्ट ईयर ही आप देखेंगे, आई थिंक 6 or 7 months बैक देयर वाज अ नोटिफिकेशन कि आप सभी सब्जेक्ट के लोग, क्योंकि एक्चुअली अप्रोच क्या हो रहा है कि लोग आईकेएस को एक सब्जेक्ट समझ के देखने लग रहे हैं और गवर्नमेंट का अप्रोच बिल्कुल अलग है।
गवर्नमेंट का अप्रोच है कि, या रादर एजुकेशनल सिस्टम का ये अप्रोच है कि हर सब्जेक्ट, बी इट साइंस, बी इट सोशल साइंस, बी इट एनी सब्जेक्ट, और साइंस में भी मतलब बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, उधर हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो अपने सब्जेक्ट के हेरिटेज को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को अपने सब्जेक्ट से कोरिलेट करे। एंड दैट्स व्हाई वेयर दिस टर्शन लाइज, क्योंकि आईकेएस एक सब्जेक्ट नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट को आईकेएस से कैसे जोड़ पा रहे हैं, और अकॉर्डिंगली आप अपने सब्जेक्ट का आईकेएस पेपर बनाएं। दिस इज द डिमांड ऑफ द अपकमिंग यूजीसी गाइडलाइंस, एंड अकॉर्डिंगली this is going to be an integrated course IKS as your subject paper in due course of time. अगर आप सभी अवेयर होंगे तो आप लोग IKS का वेबसाइट आप में से कई लोगों ने विजिट किया होगा, श्योर? एनीवन? Which website? Yes. The name. I will strongly recommend everyone to visit the website of IKS. Indian Knowledge System का अपना वेबसाइट है। अगर आप just a sec, wait. Yes ma'am, किया है विजिट। I think मैडम ने कहा भी, हम इसे तुरंत देख लेते हैं इसे। देखिए, दिस इज द वेबसाइट, आप सबको विजिबल है? यस मैम। यस मैम। और आप देखिएगा इसमें है नॉलेज रिपोजिटरी, और नॉलेज रिपोजिटरी के अलावा भी आप इस वेबसाइट को बहुत अच्छे से विजिट करें। इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जस्ट अ सेक, या आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कंपोनेंट्स को इस पे डाल सकते हैं, rather even the cultural heritage of your area, any particular cuisine, any particular game that is being played earlier in your society, इन सभी को आप वहाँ रिपोजिट कर सकते हैं। It is becoming a repository for the same. So certainly CBCS जो IKS को as a subject लाई है, it wants to make it मतलब subject specific IKS in due course of time. Okay, now moving ahead. When we talk about core courses, you all are very well aware of, और मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगी कि जरा सा ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, कि हम लोग कह रहे हैं ना कि वी आर गोइंग फॉर हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग। जब हम लोग हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेस लेने का हमारे पास ऑप्शन है। एट द सेम टाइम जैसे कोई कोर कोर्स है, मेजर कोर्स है, मेजर कोर्स का आप मान के चलिए कि हमारा 160 क्रेडिट का पूरा ऑनर्स का एक डिग्री विथ ऑनर्स का एक प्रोग्राम हम लोग कंप्लीट करते हैं। द थिंग इज दैट आउट ऑफ दैट 50% ऑफ द पेपर वी हैव टू 50% ऑफ द होल क्रेडिट वी हैव टू असाइन टू द कोर सब्जेक्ट। जबकि आपके सबके यहाँ आप अपने स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, 160 क्रेडिट है तो मेजर पेपर्स को डायरेक्टली 80 क्रेडिट्स दिए गए हैं। एंड दैट्स व्हाई जब भी कोर का कोई ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ऑप्शन लेना होता है तो आपको हमेशा अपने कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन ही चूज करना होता है। इफ यू वांट टू बी अ अंडर ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी तो आप अपने किसी भी कोर्स जिसको कि आप ऑनलाइन से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, दैट शुड बी फ्रॉम दैट वेरी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ओनली। नाउ कमिंग टू माइनर और इलेक्टिव, इलेक्टिव जो है आप जिस फील्ड से इच्छा हो उस फील्ड से ले सकते हैं। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर अबाउट दिस। यस मैम। Yes, ma'am. So moving ahead, so this is the core subject because आपके यहाँ implemented है, इसलिए इसको मैं बहुत great detail में नहीं discuss कर रही हूँ। मैं plan the number of seats as per the elective paper that is already been. Then comes the AECC courses, हम लोग already discuss कर चुके हैं, environmental science and language, and then comes the skill enhancement courses. अब एक और चीज मैं आप लोगों से share कर लूँ जरा सा, just a sec, if it is open in my system, I think I have to open it. या ये गाइडलाइंस ऑफ CBCS का अगर स्ट्रक्चर आप लोग देख ले सब,
यहाँ पे देखिए पहले 140 क्रेडिट्स का था, तो आप देखिएगा कि कोर पेपर्स के लिए 50% ऑलरेडी असाइन किया गया है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. You all can see over there. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 140 क्रेडिट्स का था तो 70 क्रेडिट्स, और जब 160 क्रेडिट्स का ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो 80 क्रेडिट्स वी हैव टू गिव. एंड देन देयर आर कोर पेपर्स, इलेक्टिव पेपर्स के क्रेडिट साथ साथ में दिए गए हैं. नाउ अगेन कमिंग टू द प्रेजेंटेशन. सो इलेक्टिव कोर्सेज, अगेन इलेक्टिव कोर्सेज की खासियत क्या रहेगी? It could be multidisciplinary, but at the same time, when we talk about skill enhancement courses, so skill enhancement courses do provide you choice, but they are mandatory. Either one or another, you have to opt for the skill enhancement courses. Then comes total number of courses, जिसको कि आप सभी अवेयर हैं, चूंकि आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेड है, इसलिए अब इन स्लाइड्स में मैं ग्रेड डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी. 14 पेपर्स होते थे, अब तो 16 पेपर हो गए हैं. 2 एबिलिटी कोर्सेज, 2 स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज एंड ऑल. यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स. नाउ कम्स कि अब जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं ये क्रेडिट और क्रेडिट सिस्टम्स की. आई थिंक वी आर लेफ्ट आउट विद टाइम ना. या सो जब क्रेडिट सिस्टम की बात करते हैं, और सर ने पहले ही एकदम सेशन शुरू में ही जब ये बात आ गई कि मैडम इसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्यों कहते हैं, तो कहीं ना कहीं अब हम लोगों को जरूरत है इस क्रेडिट को समझने की. आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेड है, मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग वेल अवेयर हैं, बट स्टिल व्हाइल गिविंग और रादर आई वुड से इंटरैक्टिंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, मैं फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं वो बेसिक स्ट्रक्चर कम समझा जाता है. क्रेडिट को मैडम एनीवन कैन डिफाइन, दो इट इज ओपन ऑन द स्क्रीन, मगर कोई अपनी तरफ से समझाना चाहेगा मुझे? व्हाट इज अ क्रेडिट? एक क्रेडिट कब मिलेगा? या जब मैंने कहा कि 160 क्रेडिट का एक कोर्स होगा, एक क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? एक क्रेडिट कब मिलेगा? मैम जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लासरूम टीचिंग भी उसमें इंक्लूडेड रहेगी, और बच्चों की तरफ से प्रैक्टिकल वर्क भी रहेगा, दैट में बी ऑन कंप्यूटर और दैट में बी हैंड्स ऑन, एंड स्पेसिफिकली फील्ड वर्क रहेगा जहां पर वो एक्चुअली सोसाइटी में जाकर उस पर्टिकुलर कोर्स का या उस पर्टिकुलर नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें. ओके, कब मिलेगा मैडम? इट मींस कि मैंने जा करके आज 1 घंटे का एक क्लास लिया अपने ग्रेजुएशन के बच्चे का, तो क्या बच्चे को एक क्रेडिट मिल गया? जी नहीं, इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज. ना मैम पर वीक लिखा है वहाँ पे. हाँ नहीं मैम, ये तो मैंने लिखा है. आप में से कोई मुझे बताइए कि ये मैंने क्या लिखा है. चलिए मैं पुराने स्लाइड पे चली जा रही हूँ और तब आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बता दीजिए. मैडम, it is actually basic measurement of a student workload. Good. Or we can say, whatever the effort or whatever the, the assessments, assignments or learning process, whatever they are doing, we can measure in terms of credit. Or in other words, we can say students' workload. Okay, fine. Like tutorials, like lecture, like activities, quiz, assignments and all. Well done, sir. Very well said you. And you said that it is the workload on the student that is being assigned in the terms of credits. Now the thing is that how much work will be considered equivalent to 1 credit? Who will say that? एक क्रेडिट क्या होता है? कौन मुझे ये क्लियर पिक्चर? It is different. It is calculated different for ये यूनिट का छोटा भाग मैडम. Different for practical classes. Yeah, it is different, but एक क्रेडिट का वैल्यू आप मुझे थ्योरी क्लास की ही बात कहिए ना सर, कि कब मानेंगे कि वो एक क्रेडिट लिया? You already 1 hour class for 90 days. 1 hour class for 90 days. It means कि अगर 90 आवर्स बच्चा पढ़ेगा तब उसे एक क्रेडिट मिलेगा. 90 credits. अब इसमें अनक्लैरिटी नजर आ रही है मुझे. Because you mentioned 1 hour lecture is equal to 1 credit. Based on that, we can say 90 hours teaching means 90 credits. हाँ, it means कि सर 1 घंटा पढ़ा देने से एक क्रेडिट मिल जाता है. Yes, yeah. Okay. No madam, no madam. As per our syllabus, जैसे सिलेबस में बताया हुआ है कि एक क्रेडिट है उनके इंटरनल असेसमेंट के लिए, जिसमें हम लोग ले सकते हैं उनके वर्कशॉप, सेमिनार्स, उनके वर्क बुक्स, उनके कुछ प्रैक्टिस शीट्स, जिनकी वजह से अगर वो पूरा का
पूरा उन्होंने काम अगर हमें सबमिट किया हुआ है तो शायद हम उनको एक क्रेडिट दे सकते हैं। ऐसा सिलेबस में जो क्रेडिट का ग्रेडेशन किया हुआ है उसके ऊपर से बता रही हूँ। ठीक ठीक, चलिए ठीक है। इसीलिए मैंने इस बात को स्पेसिफिकली मैं रखना चाहती थी बिकॉज कई जगह yes, 1 hour per week. Thank you very much, sir. Well done, sir. अच्छा 1 week per week कहा गया सर, तो सपोज कीजिए कि एग्जाम जो है वो डिलेड हो गए, जून की जगह जुलाई में हो गए, तो क्या उस बच्चे को एक्स्ट्रा क्रेडिट दे देंगे? No, it is fixed for particular semester. Okay, so how to define these things? How to come on a particular definition? In other words, for a course, student has to work this much hours. Yeah, that's the thing. But how much hours? This is what exactly I am asking. इस क्रेडिट को समझने की जरूरत की बात कह रही हूँ। For example, I mean, for 4 credit subject per week, we can take 4 hours theory lectures and all that. Otherwise, 2 lectures or 4 tutorials like that. Just sir, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब सिंप्लीफाई करके चला जाए, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को दिमाग में रखती हूँ, तो अगर 4 घंटे मैंने पढ़ाया सर उसे, तो वो 4 क्रेडिट मिल जाएगा। Yeah, definitely, ma'am. Per week, if you teach four hours, so we can give 4 credits per semester or for that course. Per semester. Yeah. मैं एक सिंपल क्वेश्चन हवा में डाल रही हूँ आप सबों को, किसी बच्चे को 1 क्रेडिट एक्वायर करने के लिए कितने घंटे का क्लास पढ़ना होगा, थ्योरी क्लास? Not less than 1 hour. किसी ने 20 hours, madam. किसी ने 20 hours. So here 16 hours, madam. As per CBSE 16 hours. नहीं, अगर सीधा कैलकुलेशन करेंगे तो समझ के चलिए 1 हफ्ते में 2 क्रेडिट्स के लिए हमें 2 घंटे का लेक्चर लेना पड़ रहा है। यानी 1-1 घंटे के ऐसे 2 लेक्चर्स लेने पड़ रहे हैं, तो हमें 3 महीने का एक सेशन होता है, तो उसके हिसाब से शायद कैलकुलेशन आ जाएगा। चलिए, लेकिन मैडम ने बहुत सही पकड़ा है, वो सही डायरेक्शन में जा रही थी। एकदम क्लियर कर लिया जाए सर, हमने पहले क्या कहा कि जब हम क्रेडिट सिस्टम पे आए थे, उसके पहले हम लोग सेमेस्टर सिस्टम पे आ गए थे, जी? सेमेस्टर सिस्टम, अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा देर समझा जाए। एट अ टाइम किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में या तो इवन सेमेस्टर चलते हैं या ऑड सेमेस्टर चलते हैं। इवन सेमेस्टर इसका सीधा सा मतलब है जनवरी टू जून, और दूसरा क्या कहलाता है जुलाई टू दिसंबर, अगर आप सभी ध्यान दे तो, या चाहे नोट डाउन करके चाहें तो। ओके, द थिंग इज दैट एडमिशंस कब होते हैं सर सब जगह? जून जुलाई में। जून जुलाई, दैट्स द थिंग क्लियर। जब जुलाई में आया बच्चा तो जुलाई से दिसंबर तक उसका पहला सेमेस्टर हुआ, और जनवरी से जून तक उसका दूसरा सेमेस्टर हुआ। क्लियर, एकदम क्लियर? Yes, ma'am. 1 is an odd number. 1 is an odd number and 2 is an even number. Clear? Yes. So that's why July to December is known as odd semester. Yes, ma'am. And January to June is considered as even semester. Yes. Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. देख ले कि हमने बच्चे का अपने यहाँ जुलाई में एडमिशन ले लिया है, ठीक है? जुलाई में एडमिशन ले लिया, बच्चा ऑड सेमेस्टर में एंटर किया है एंड ही इज गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर कोर्स। अब वो क्रेडिट पढ़ने के लिए कितना समय मिला है उसको? एक सेमेस्टर कितने ये का रहेगा सर? 6 महीने का। लेकिन इस 6 महीने के ड्यूरेशन में हमने क्या क्या करना है? उसे पढ़ाना भी है, उससे फील्डवर्क भी करवाना है, उसका एग्जामिनेशन भी लेना है, उसको इवैल्यूएट करना है, फिर उसका एंड सेमेस्टर भी लेना है, उसको भी इवैल्यूएट करना है। इसी बीच पता चलता है कि आपका वो पोंगल आ गया, इसी बीच मेरा वो फेस्टिवल आ गया, इसी बीच नेशनल फेस्टिवल्स आ गए, तो हॉलीडे भी सेलिब्रेट कर लेना है। सो मोर और लेस अगर वर्किंग कंडीशंस को मान करके चला जाए तो एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस मोस्टली एक सेमेस्टर में मान के चला जाएगा सिर्फ और सिर्फ 90 डेज पढ़ाई होती है, और बाकी के बाकी 90 डेज सेव कर लिए जाए एडिशनल वर्क के लिए, इवैल्यूएशन के वर्क के लिए, चाहे यूथ फेस्टिवल के लिए या फंक्शन सेमिनार के लिए, व्हाटएवर। तो बच्चे ने पढ़ाई कितने दिन की? सिर्फ और सिर्फ
90. In 6 months, 3 months has been left for other activities, and 30 days is 90 days has been assigned for study purpose only. And now coming to the thing, जो सर ने बात कह रहे थे और मैडम जो आवर की बात कर रहे थे, अगर 90 डेज हैं तो रफली अराउंड 15 वीक्स हम लोग कह सकते हैं, अगर वो 6 दिन का वर्किंग डेज होगा तो। कई जगह सैटरडे वर्किंग डे होता है, कई जगह सैटरडे वर्किंग डे नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर द सैटरडे इज अ वर्किंग डे। सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट 90 वर्किंग डेज with the theory classes, which makes it 15 week. Done? Now, upcoming to the definition of 1 credit. अभी मैं सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल्स और सबकी बातें नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्लास की बात कर रही हूँ। 1 hour of teaching per week per semester defines. Okay? तो it means कि 1 week teaching, और टोटल टीचिंग हमें एक सेमेस्टर में कितने वीक ले जाना है? 15 वीक्स के लिए। It means if a student goes through 15 hours of teaching in a semester, then only he would be or she would be eligible for 1 credit. Is it clear to everyone? Yes, madam. अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं न रह गया सर और मैडम, क्या होगा? और ये और मैं एक और बात कह दूं, जब सैटरडे संडे 2 दिन का वैकेशन होता है, अब आप सोच लीजिए 90 आवर इज द मैंडेटरी। अब उसको डे के हिसाब से चाहे वो जैसे मैनेज कर ले, बट 15 आवर ऑफ अ टीचिंग इन अ पर्टिकुलर सेमेस्टर इज मैंडेटरी फॉर 1 क्रेडिट। क्लियर टू एवरीवन? एंड नाउ कमिंग टू द थिंग्स, कि चूंकि हर सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं होता है, किसी में प्रैक्टिकल होता है तो किसी में फील्ड वर्क होता है, और अब उसके ग्रेडिंग्स अलग हो गए। 1 hour of theory is equivalent to 2 hours of practical, और 1 hour of theory is equivalent to 3 hours of field work. Accordingly अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर ले। तो अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैंने ये आपको वर्कआउट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि प्रैक्टिकल कितने आवर्स का होना चाहिए। उस केस में 15 आवर की टीचिंग है तो 30 आवर्स का प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, और 90 आवर्स का आपका क्या हो, सॉरी 45 आवर्स का क्या हो जाना चाहिए? फील्ड वर्क हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? आई होप मैंने अपनी बात बहुत क्लियर से रखने की कोशिश की है आप लोगों को। अगर आप बीओएस के पार्ट होंगे, आप अपने यहाँ बोर्ड ऑफ स्टडीज आपके यहाँ भी होती होगी, और आप अगर सिलेबस फ्रेमिंग करते होंगे तो यू माइट हैव सीन कि सिलेबस में नंबर ऑफ आवर्स भी दिया जाता है, हर टॉपिक के साथ आवर्स। और अगर 4 क्रेडिट का अगर कोई सिलेबस है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई हैव सीन द कोर्सेज ईदर ऑफ 3 क्रेडिट्स और ऑफ 4 क्रेडिट्स। तो अगर वो 3 क्रेडिट्स का रहता है तो आप देखिएगा कि 45 आवर्स का वो पूरा कोर्स रहता है, और अगर 4 क्रेडिट्स का रहता है तो टोटल 60 आवर्स का वो कंटेंट दिया गया रहता है। एंड दैट इज द वेरी रीजन कि हम लोग कोर्स को या क्रेडिट्स को जो है वो नंबर ऑफ आवर्स से कोरिलेट करके देखते हैं। होपफुली आई हैड मेड माय सेल्फ क्लियर। Ma'am, one small. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here you mentioned lecture or tutorial. Both are same? No, I don't think so. Come again, sir. Lecture or tutorial. Actually, sir, whenever basically it is not lecture or tutorial, I should use the word theory classes, and the theory classes always comes in the forms of lectures. As far as tutorial is concerned, basically it is considered different when that is the additional classes. लेकिन यूजीसी के गाइडलाइंस में अगर देखा जाए सर, तो फिर ट्यूटोरियल के 1 आवर ट्यूटोरियल को भी 1 क्रेडिट के लिए इक्विवेलेंट माना जाता है, इक्विवेलेंट टू 1 लेक्चर। 2 hours tutorial equivalent to 1 not same thing. That I agree with you. Tutorials and lectures are not same thing. Tutorials are always additional, but 1 means 1 hour of theory itself is equivalent for 1 credit. So 2 hours tutorial is equal to 1 credit. Can we take like that? No, you can't take like that. When it is, suppose tutorials can be arranged for the theory classes as well as practical classes. So theory will go with the theory replacements and practical will go for the practical replacement. Okay, madam. Thank you. Hopefully I am clear.
Means tutorials means additional classes, madam. Yeah, tutorials are always for the additional purposes. Like there are slow learners, so we are providing them with the extra classes. So we will provide the tutorial classes. But in tutorial classes, we will not give the theory and the lectures. We will clarify the doubts by solving the problems and all that. So I don't think so. It is as good equivalent to. I do agree with you, sir. But till time, whatever demarcation that has been done by the UGC guidelines, it go for the same thing. If you go for the distribution of the credits, you will find lectures or tutorial work. And again, time and again, it's very much clear. When this tutorial service is being provided for the theory, it is having the 1 hour. When it is being provided for the practical related obstacles, then it is for the 2 hours. Okay, madam. Thank you. Okay. Now, credit is hopefully clear. Coming to the thing, now grading system, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि अब क्रेडिट्स तो हम लोग दे देते हैं, इससे ग्रेडिंग कैसे आएगी और ग्रेडिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. पहली बात है कि डिफरेंस क्या था. एब्सोल्यूट ग्रेडिंग जो है वो 2 तरीके का हो सकता है. वन इज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड अनदर इज नोन एज द रिलेटिव ग्रेडिंग. और कहीं ना कहीं आप सभी अवेयर होंगे, ये याद है पहले हमारे बच्चे जब अपीयर होते थे तो भी से कि उसका 90% मार्क्स आया है. आज के डेट में वो कैट मैट और जेट में अप्लाई करता है और अपीयर होता है, तो व्हाट वी रिप्लाई, हम कैसे बताते हैं अपने बच्चों के अचीवमेंट्स को? परसेंटाइल. And then there is a difference between percent and percentile. So what is this percentile, anyone? मैम अगर 100 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं और मेरा 99 परसेंटाइल है, मतलब मैंने उन 99 स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म किया. It means that's the thing. It doesn't matter कि 100 में मैंने 60 लाया कि 70 लाया. अगर मेरा परसेंटाइल 99 है और मैंने 70 लाया है, इसका साफ मतलब है कि बाकी सभी बच्चे जो हैं 99 बच्चे जो हैं वो 70 से नीचे की मार्किंग लाए हैं. वेरी क्लियर इट इज. इट मीन्स relative grading or percentile is something that is not related to my performance. It is always in comparison with the performance of all the peer group who had appeared for that particular exam. And that's why we call absolute grading and relative grading. It means if my performance is going to give me grade, then it would be known as absolute grading. And when the performance of the peer is going to determine my grade, then it is known as relative grading. And now we are moving towards this relative grading की तरफ ज़्यादा assessment हो रहा है. क्यों? Again concept वही है, because we have to go for the globalization of education, and that's why we had to meet the demands of the global system where already relative grading system is common, and that's why we are moving towards. The thing is that marks absolute grading में क्या होता है, पहले से ही दिया ग्रेड सिस्टम आप सब जानते होंगे. ए बी सी और डी और ई जैसा का ग्रेडिंग दिया जाता है. वी डू नो कि अगर ए ग्रेडिंग है तो 90 to 100% के बीच में है. बी ग्रेडिंग है तो कितना है वो 80 to 90% के बीच में. तो ये जो बात शुरू में उठी थी कि वी वांट टू मेक द डिस्क्रिमिनेशन लेस, लेकिन फिर मैं बार बार अपनी बात को कहूंगी. इट्स माई स्ट्रॉन्ग अर्ज दैट व्हेनेवर वी इवैल्यूएट वी ऑलरेडी मेक अ डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज हमारे पास असेसमेंट का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है. वन इज बेटर देन अदर, वही तो ऑप्ट करना होता है. व्हाई वी गो फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कि जो बाकी से बेहतर है उसको हम फेच कर सके. एंड व्हेनेवर वी आर जजिंग दैट समवन इज बेटर देन अदर्स, we are already making a discrimination. So we can't say that even going for relative grading is not a discrimination. परसेंटेज बेस्ड होता है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, जैसा हमने परफॉर्म किया है वो उसको अफेक्ट करता है या रिफ्लेक्ट करता है. वेयर एज रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ अदर आल्सो मैटर्स और ये परसेंटाइल बेस्ड होता है. नाउ कमिंग टू द 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम ऑल अक्रॉस इंडिया, सबसे कॉमन यही है. यहाँ आप 2 चीजें देख सकते होंगे, एक है ग्रेड पॉइंट और दूसरा है मार्क्स. उसके हिसाब से ग्रेडिंग कर दी गई है अल्फाबेटिकली. पूरे दुनिया में सिर्फ यही सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. वी गो फॉर 14 पॉइंट्स ग्रेडिंग के सिस्टम, 10 पॉइंट ग्रेडिंग
सिस्टम जो है वो भी डिफर करता है। और अगर आप सभी चूंकि यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से अवेयर है, नैक की ग्रेडिंग आप सभी को पता होगी सर, और वो 10 के स्केल पे नहीं करते हैं। नैक का अगर इवैल्यूएशन देखिएगा तो वो 5 के ग्रेड पे करते हैं, isn't it? तो वो भी एक स्केलिंग सिस्टम है। सो व्हाई आई वांटेड टू फेच योर अटेंशन, सो देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम्स ओवर देयर, ठीक है। बट मोस्ट स्टैंडर्ड जो है ये आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है, मोर और लेस यही 10 पॉइंट ग्रेडिंग जो होता है कहीं हर जगह किया जाता है। नाउ द थिंग इज दैट ज्यादा समय इस पर नहीं वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आई वांट टू ब्रिंग टू कि ये जो SGPA और CGPA की बात आती है, मोस्टली हम लोग समझते क्या है, व्हाट्स माय ग्रेड इज दैट इज इक्विवेलेंट टू माय ग्रेड पॉइंट्स। नो, ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट्स आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स एंड वन हैज टू अंडरस्टैंड थिंग्स। इस क्योंकि समय बहुत कम बच रहा है, मैं बहुत क्विकली एक दिखा देती हूँ आप लोगों को, जरा सा इस चीज को देख ले। तो ये प्रीवियस दो जो स्लाइड्स थे सर, कहीं ना कहीं इस पूरे फॉर्मूला को दिखाते थे, प्रोसेस को दिखाते थे, बट सिंस आई एम लेफ्ट आउट विथ लेस टाइम, दैट्स व्हाई बहुत क्विकली एग्जांपल के साथ दिखा देती हूँ। जैसे सोच लीजिए, मैं पहले बात कर लेती हूँ CGPA की बात। अब CGPA में आगे दो चीजें एकदम क्लियर हो जाए। सेमेस्टर 1 है और उसमें बच्चे ने 6 पेपर पढ़ा। 6 पेपर मतलब 6 कोर्स और प्रोग्राम का डिफरेंस आप में से कितने लोग अवेयर हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड प्रोग्राम? Program means collection of all the courses. Course means individual subject. The individual papers. Papers, yeah. That's it. जितने पेपर पढ़ते हैं, हर पेपर एक कोर्स है अपने आप में। डन। So the thing is that कि बच्चा अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है और उसे 6 पेपर पढ़ने पड़ रहे हैं। हर पेपर में कुछ क्रेडिट असाइंड है, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट, वॉट एवर क्रेडिट इज बीइंग असाइंड। और जैसा मैंने कहा है, सबसे कॉमन रहता है 3 और 4 क्रेडिट्स का पेपर, और कुछ पेपर्स जो होते हैं खास करके वो फाउंडेशन कोर्स वाले या अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाले पेपर्स जो होते हैं वो 2 क्रेडिट्स के भी होते हैं, बट मोस्ट कॉमन आर 3 और 4 क्रेडिट। डन। नाउ द थिंग इज दैट कि सपोज आफ्टर द एग्जामिनेशन बच्चे को A ग्रेड मिला है और उसका ग्रेड पॉइंट है 8, इट मीन्स कि उसने 80% मार्क्स या 85% मार्क्स अचीव किए हैं, तो उसे A ग्रेड मिला है। सपोज हिज ग्रेड पॉइंट और हर ग्रेड पॉइंट इज 8। नाउ कमिंग व्हाट इज, अगेन आई एम पुटिंग द थिंग, there is a difference between your grade and your grade points. Similarly, there is a difference between your credit and credit points. ये अगर आप फॉर्मूला देखें, what exactly a credit point is? क्रेडिट पॉइंट आपका टोटल कोर्स कितने का था? 3 क्रेडिट का था, और अगर आपने 8 पॉइंट ऐड अर्न किए हैं तो व्हाट इज योर क्रेडिट पॉइंट? 24। क्लियर? Yes, दिस इज फॉर द 1 कोर्स। डन। अब सपोज कीजिए कि ऐसे 6 कोर्सेस आपने अक्वायर किए और सारे में इतने सारे क्रेडिट पॉइंट्स अक्वायर किए। सो व्हाट इज CGPA? अब सपोज कीजिए कि आपका पहला सेमेस्टर जो था ये सारे कोर्सेस मिला करके 20 क्रेडिट्स का था। क्लियर? 20 क्रेडिट का, और आपने टोटल चीजें मिला के सपोज कीजिए कि आपने 200 पॉइंट्स एक्वायर कर लिए हैं क्रेडिट पॉइंट, तो व्हाट इज योर 1 CGPA? 1 आपका CGPA कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 20, इट मींस 10। क्लियर? CGPA का कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, madam. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द क्रेडिट पॉइंट इज। अगर इसको बेटर टर्म में आप लोग देखना चाहें तो आई कैन से, अगर फॉर्मूला में अगर इसे कहा जाए, मैंने यहाँ SGPA को दिखाया है, CGPA would become here, I think it's not there, there was total credits, that's it, total credit points divided by total credit of the courses. Clear? That would become the CGPA. अब बात आ जाती है कि SGPA क्या होता है, सेमेस्टर के एंड पे क्या होता है। सेमेस्टर के एंड पे जो होता है दैट इज नोन एज द सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट असेसमेंट। सो SGPA सिमिलरली क्या हो जाएगा, सारे सेमेस्टर्स में आपने जितने पॉइंट अर्न किए थे डिवाइडेड बाय, हियर इट इज, या दैट्स, दिस इज एग्जैक्टली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड, कि आपने सारे सेमेस्टर्स में जितने पॉइंट्स ऐड किए सबका सम
प्लस आपका वो पूरा प्रोग्राम कितने क्रेडिट का है, दैट विल लीड टू योर SGPA. क्लियर? क्लियर? And that's why I have come. Yes ma'am. Yes ma'am. क्योंकि मैं जान रही हूँ कुछ लोगों को तो ये क्लियर होगा और कई लोग कंफ्यूज भी हो गए. बट व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू सजेस्ट यू पीपल, काइंडली गो थ्रू योर सिलेबस और आप देखिए कि आपके हर सेमेस्टर में हर एक कोर्स कितने क्रेडिट का है और एक आर्बिट्रेरी चार्ट बनाइए और इससे आप क्या निकालिएगा, SGPA. और SGPA के सारे पूरे, सपोज कीजिए कि 3 कोर्स था तो 6 साल के बाद यू वुड बी एबल टू गेट अ SGPA. इट मीन्स की कंप्लीट क्यूमुलेटिव CGPA, इट मीन्स क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स. ठीक है. So what is the achievement or advantages of this very system? Basically, I think I am running short of time, so very quickly we will go that टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच दे रहा है, लेस डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशंस के चलते वो एक कहा जाता है ना, एग्जाम फोबिया से बच्चा नहीं सफर कर रहा है क्योंकि उसको 2-2 मिड सेम देने पड़ रहे हैं, एक एंड सेम देना पड़ रहा है. तो अगर एक में उसने बुरा भी परफॉर्म कर लिया तो ही हैज एन ऑप्शन कि आगे वो बेटर परफॉर्म कर सके. इंटर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है. आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी. ये तीनों एकदम कंप्लीटली डिफरेंट टर्म होते हैं. बोलने के लिए हम लोग एक सुर में गा देते हैं, but they all have their specific meanings. Then comes that CBCS offers the flexibility for the student at differential time and at differential institution. It means कि they can go for other institution, we had already talked about. And the most important is कि out of this, due to academic bank of credit, जो पोर्टेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट है और पोर्टेबिलिटी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, वन नेशन टू अनदर नेशन एंड वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट्स बिकम्स पॉसिबल. डिसएडवांटेज क्या है? मैं पहले ही कहूंगी सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि इट रिक्वायर्स अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर. लैक ऑफ एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द मार्क्स लैक्स ओवर हियर. जैसे कि हम क्लियर रहते हैं जब हमारा नॉर्मल एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होता है और मैंने पाया कि किसी सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर कोर्स में रादर, अगर मैं 50% से कम ला रही हूँ तो मैं क्लियर हूँ कि मुझे फिजियोलॉजी में और इफेक्ट लगाना है, उस पेपर में मुझे और मेहनत करनी है. लेकिन जब हम CGPA पाते हैं या SGPA पाते हैं तो इट डिडंट गिव्स अस क्लियर आइडिया कि मैं किस पेपर या किस कोर्स में वीक रह गई थी. So this is the thing we have to work out on. Then increase the workload on teachers, as we said कि और बढ़ता जाएगा वर्कलोड. अलग अलग सिस्टम्स में एडमिशन प्रोसेस टफ हो जाता है, रूटीन बनाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सारे इवैल्यूएशन को समअप करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. टाइम टेबल के लिए सेम टाइम टेबल पे अगर 2 जगह क्लासेस है तो स्टूडेंट कैसे मैनेज करे. तो इसके लिए क्या होगा, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स होंगे. सो दीज आर द थिंग्स वी नीड. अब एक लास्ट और बहुत समअप करते हुए, मूक्स आप सभी जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज. मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. ठीक है. स्वयं प्लेटफॉर्म है. स्वयं प्लेटफॉर्म हमारे गवर्नमेंट की ओर से प्रेस्क्राइब्ड है. इसके अलावा कोर्सेरा, यूडेमी, खान क्लासेस, लॉट्स ऑफ कोर्सेज आर देयर जो कि ओपन प्लेटफॉर्म है, प्राइवेट प्लेटफॉर्म है. ठीक है. इनका क्या इंपॉर्टेंस है CBCS में? एनीवन हु कैन गिव अ क्विक रिमार्क? We can earn credits from there also. That's the thing. It means कि since we have an option, तो अब ज्यादा इम्पोर्टेंट, और आप चूंकि सबको इस प्रोफेशन से रिलेटेड है तो यू विल फील कि अब जो नया प्रमोशन स्कीम आया है सर, वो सबसे पहले सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और पेपर पब्लिकेशंस को ज्यादा मार्क्स रहते थे. अब ऑनलाइन कंटेंट डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा मार्क्स दिए गए हैं. अगर एक कोर्स अगर आप बना लेते हैं जो कि स्वयं पे अपलोड हो जाता है तो यू विल गेट 25 मार्क्स फॉर दैट, विच इज अ ह्यूज नंबर. सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि अब हमारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का नीड और रिक्वायरमेंट्स बढ़ गया. द मोर कोर्सेज वी विल ऑफर ओवर देयर, मोर स्टूडेंट्स कैन गेट न्यू टाइप ऑफ कोर्सेज फ्रॉम दैट. एंड रेदर अगर हम IKS को प्रमोट करना चाहते हैं
तो हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी नया कॉन्सेप्ट IKS से जुड़ा हुआ हो हमारे सब्जेक्ट से, उस पे 1, 2 या 3 क्रेडिट का कोर्स बना करके हम अब ओपन रिसोर्स के रूप में, OER के रूप में उसको फ्लोट कर सकते हैं. So this is where even the MOOC courses are now becoming more important, more relevant, more approachable. The thing is that certainly we are going through a transformation, a change. पूरे एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ा अंतर आ गया. रादर यू माइट बी फीलिंग कि आज जो ये कोर्सेस हम कर रहे हैं, आज अब आप जो ये कोर्स कर रहे हैं, you will feel कि Preeti madam will leave no stone unturned to get good resource person from all over India. Even we are getting resource persons from abroad. So you all can understand कि earlier it was not that much easy. जब आप ऑफलाइन कोर्सेस ज्वाइन करते थे और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते थे तो क्या होता था, इधर नागपुर, उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ अगल बगल के स्टेट से बुला लिया गया, और शायद इक्का दुक्का रिसोर्स पर्सन आपके होते होंगे जो फार स्टेट से आते होंगे. अब ड्यू टू ऑनलाइन अप्रोच एवरीथिंग इज चेंजिंग. We are moving towards the quality enhancement. So certainly the change is inevitable, but growth is optional. किसी भी रिसोर्स का हम कितना बेहतर यूटिलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं. Same is the thing with CBCS. CBCS is a system which provides you more and more options. Now it is up to us that in which way we choose the best thing which is really suitable and dynamic for us. So that's why with these words I would like to thank you everyone. I am open to questions. And सबसे लास्ट में, अगर आप सभी कोई हिंदी पढ़ पाते हो तो इसे पढ़ेंगे मेरे लिए. कृपया यहाँ ध्यान न बांटे, यहाँ सभी ज्ञानी है. So this is my humble submission. ये स्लाइड मैंने इसलिए दिया कि मैं फील करती हूँ कि भले ही हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे चले आए, but the thing is that कि I do know you all are equally intelligent, equally do know the things. It's not that like that. It's just a matter of chance that I got the opportunity to talk with you people. But certainly you all added to my knowledge as well and give me a learning experience too. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you, madam. Very nice. Thank you, madam. Very Thank you. knowledgeable. Thank you very much, ma'am. बहुत सारे चीजें Thank you so much, ma'am. अपने क्लियर किए हैं. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you everyone. किसी की तरफ से कोई प्रश्न है या कोई मुझ में कोई चीज ऐड करना चाहता हो जो मैं कहना भूल गई हूँ? मैडम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, सारे फॉर्मूलेज उसके एग्जांपल्स लेते हुए. वेरी नाइस सेशन मैडम. और बहुत सारी नई चीजें भी पता चली, जो बारीक बारीक चीजें हमें पता नहीं होती है उसके बारे में भी आपने बताया. इट वाज अ वेरी नाइस सेशन. टुमारो ऑल्सो मैडम इज हैविंग वन सेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो मैडम हमें कल भी मिलेंगे. आज के कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं. दर्शना मैडम हैज रेज्ड हर हैंड. Uttara? Ma'am, there is one question. कि जैसे I was the part of the BOS regarding the at the time of syllabus framing. तो वहाँ पे जो क्वेश्चन उठ रहे थे, मतलब जैसे कि हमने देखा कि CBCS में जो इश्यूज थे, जब भी मतलब अलग अलग कॉलेजेस से हम तब स्पेशलाइजेशन के कोर्स कर सकते थे, बट स्टिल टीचर्स ऑप्ट नहीं कर पाते थे, मतलब वो अलाउ ही नहीं करते थे. उसमें बहुत सारे रीजंस है. मतलब while discussing on that platform हमने ये भी देखा कि हम अपने बच्चे क्यों जाने दें, क्योंकि हमारा वर्कलोड कम होगा. मतलब Yeah, that's very true, sir. I do agree, and I would say, sir, कि ये आपकी ही नहीं, more or less हर institution में, क्योंकि I am also a member of IQAC of my university. At the same time, I am a resource person at UGC website. So do get the chances to interact all over India. और मैंने ये problems हर जगह पाई हैं, sir. सिलेबस फ्रेमिंग की बात हो या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शंस देने की जब बात आती है, तो सब लोग कहीं ना कहीं कुछ अपने कंफर्ट जोन को देखने लग जाते हैं. एक और मैं इस प्लेटफॉर्म पे, वी ऑल आर लर्नेड पीपल, वी आर मैच्योर इनफ, सो वी कैन टेक दिस जोक दैट आई हैव सीन द थिंग कि लोग कहते हैं कि अरे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में पढ़ के बच्चा आता है तो मुझे साइंस में ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें वो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व कर रहा है. And this is something, and the teacher was very much apprehensive to deal with that very factor. But this is what the concept of
होलिस्टिक डेवलपमेंट एज। जब साइंस, वो जो घोड़ा जब रोड पे दौड़ता है तो वो ब्लाइंडर्स लगा दिए जाते हैं ना सर, इसी ब्लाइंडर्स को तोड़ने की कोशिश की गई है हमारे एनईपी में कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। हमारा सब्जेक्ट एक बंद बॉक्स नहीं है जिसके भीतर हमें रिसर्च करना है। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर द न्यू एवेन्यूज एंड दिस इज व्हाट द एनईपी प्रमोट्स। बट एट द सेम टाइम मतलब जब हम वो सिलेबस का ड्राइव कर रहे थे बीओएस में, बहुत सारे फैकल्टीज के ये भी इशू थे, मतलब वो हम तक वो पहुंचा रहे थे कि एट द टाइम ऑफ दैट ड्राइव कि ठीक है आप ये मल्टीडिसिप्लिनरी प्रमोट कर रहे हैं, बाकी सब चीजें प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वर्कलोड का क्या होगा? मतलब अगर वो इन सर्विस है, मतलब क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ा रहे हैं तो उनके वर्किंग आवर्स के हिसाब से ही उनका अपॉइंटमेंट रहेगा। अगर वो कम या ज्यादा होते हैं तो मतलब बेसिकली उन पे ही वो चीज बैकफायर करेगी। सो दैट वाज आल्सो द कंसर्न। That's the thing सर। अब ये कुछ चीज मैं बार बार कह रही हूँ कि ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है। आप AISHE का डाटा देखिए या अपने इंस्टीट्यूशन का NAAC करवाइए तो वहाँ स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत मैटर करता है, और मेंटर मेंटी सिस्टम भी गुड ग्रेडिंग फेच करने के लिए मेंशन करता है। सपोज अब एक टीचर के अंडर 100 बच्चे हों तो सर वो क्या मेंटरिंग कर पाएगा? वो टीचर किस बच्चे की प्रॉब्लम को विशेष ध्यान दे पाएगा? तो सर्टनली नंबर ऑफ टीचर्स, वर्कलोड इसमें बढ़ रहा है। एग्जामिनेशंस या कंटिन्यूअस इवैल्यूएशंस के चलते बच्चों को तो प्रिविलेज मिल रहा है कि वो ज्यादा मींस ऑप्शंस है उनके पास अपने आप को इम्प्रूव करने के, लेकिन सिस्टम पे वर्कलोड बढ़ रहा है एंड मोर मैन पावर इज रिक्वायरमेंट इज देयर। But the thing is that still I would say कि I think कि vacancy issue is such a issue which is omnipresent। मतलब all over India जितनी यूनिवर्सिटीज में देखती हूँ, number of required faculties are less, and that's why this NEP implementation will have got lots of hindrance in their way to the achievements। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज चाहिए होगा। और एक क्वेश्चन था उसी के एडिशन में, जो हमने अभी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हम ये जो सब कर रहे हैं 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम एंड ऑल दोस, सो वी आर ट्राइंग कि यूनिफॉर्मिटी हो इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड अब्रॉड। जैसे कि हम अब 2 सेशंस में भी एडमिशन देने का यूजीसी ने नोटिफिकेशन निकाला है, जो भी दे सकते हैं उनको। तो वैसे ही अभी 28 नवंबर का जो यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, उन्होंने उसमें एडीपी या फिर ईडीपी के बारे में वो बात कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम या फिर एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम। तो फिर से हम उसमें 4 ईयर को चेंज करके आइदर 6 सेमेस्टर में मतलब 3 ईयर में ला रहे हैं। तो दैट विल बी नॉट द हिंड्रेंस फॉर आवर स्टूडेंट्स टू टेक एडमिशन इन द अब्रॉड इंस्टीट्यूशंस। That's the thing that would again would become, because like the thing is that कि but you will say कि ये जो accelerated program भी है ना सर, वो आपको डिग्री 4 साल के बाद ही देगा। It will only provide you with an opportunity that you will add extra credits to the things. No, they have clearly mentioned in it that you will get degrees after means acquiring adequate credits. It's all like that कि they are providing the means what to say facility to the fast learners. If they can be they do that facility they are providing it only to the 10% learners. They will be identified in the which are the extraordinary learners. That's true, but again I really don't know ki how the global scenario is going to take it, because global university whether they will accept it or not, because credit is there 160 they have already acquired, but they would still ask for that 4 year or not, that I am not very clear of. That was the same question, मतलब question वही था कि वो accept करेंगे या फिर नहीं। बट अगेन इफ यू कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि जैसा उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ 10%, इवन ये जो 4 ईयर का जो ऑनर्स वाला प्रोग्राम आ रहा है सर, जो अब ये बदल भी गया, जो प्रीवियस था वो कह रहा था कि ओनली 25% of the existing students, and some universities said only 10% of the existing UG 3rd year student will be promoted to the 4th year. Sorry, rather means 10 or 25% will be promoted for the honors degree. So now the things are changing and it is still in that box. लेकिन आप सच एक चीज फिर देखिए कि when we are just considering those cream student who are fast learner, who are extraordinary, only they will go for promote, will get the chance to be in that research of 4 year means degree with honors course, only 10% will get that chance.
Earlier it was like that. Now they are coming up with 25%. So what I want to say over here, that discrimination is still existing. Whenever we are evaluating, that discrimination is going to be in process, and we have to look forward for the new way. I think I am exceeding the time, and Yes, no issues, madam. It was a nice discussion. Yes, I have another session at 4 o'clock. So हम यहाँ पे रुकते, कुछ और क्वेरीज है तो हम उसको कल कंटिन्यू करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस यस. तो सूरज सर कुछ क्वेश्चन है तो हम उसको कल कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज वी आर सेशन इमीडिएटली. Okay, madam. Yeah. So I extend my thanks to respected Soni Tiwari madam for today's session. Madam, see you soon tomorrow at the same time with the next section of on sustainable development goals, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Talking to all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, friends. हम यहाँ पे रुकते हैं. See you all tomorrow at 10:30. और कल पहला सेशन अगर आप लैपटॉप या तो डेस्कटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं तो कीजिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी एडवांस MS Excel. So see you all tomorrow at 10:30. Thank you so much. I will send the report link shortly. Thank you so much. Yes, madam. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. हेलो मैम, प्रीति मैम. Yes. मैडम सेकेंड सेशन का वीडियो प्लीज सेंड करिएगा. कर दिया है मैंने, ग्रुप में डाल दिया है. ओके ओके, थैंक यू मैम. और रिपोर्ट आप मैम ये भी सेशन का वीडियो ये करो, सेंड कीजिए. Which one? ये सोनी मैम. अभी इसके बाद होगा ना, वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी. ओके मैम, थैंक यू. चलिए आप लोग